Hello everyone, myself Dr. Ram Babu Tripathi, working as Associate Professor in Ramesh Institute, Greater Noida. Today we will discuss about the analytical errors, means the errors which occurs during the analytical experiments. Okay, what is the errors? Errors is also known as sometimes mistakes. Means error is defined as the difference between the measured value and the true value. And the measured value and the true value difference is known as the errors, and this error is called as absolute error. Measured value is sometimes also known as the observed value, and the true value is also known as the actual value. So measured value and the observed value the same things, and true value and the actual value is the same things. Okay, but sometimes the errors expressed in the terms of percentage errors. So absolute error is the VA minus VB. VA is the approximate, means measured value, and V is the exact value, true value, or actual value. Are the same thing. So VA minus B is the absolute error, and these absolute error may be either positive or negative. The errors may be either positive or negative. But sometimes these errors are mainly expressed in terms of the percentage error. Percentage errors means VA minus VE divided by VE into 100. Okay. The what is the errors? Error is the mistakes, and it is defined as the difference between the measured value and the true value. And these difference between the measured value and the true value is called as the absolute errors. And these absolute error may be either positive and the negative. But errors may be also expressed in the terms of percentage errors. In case of percentage error is the VA means the approximate measured value or observed value, minus VE is the exact value divided by the exact value or the true. Okay. Classification of errors. Errors are mostly classified into two categories. First one is the systematic errors, and the second one is the random error. Systematic errors are also known as the constant errors and determinant errors. Why it is called determinant error? We will discuss in the next slide. And random errors is also called as the accidental errors or the indeterminate errors. Okay. Determinants errors as systematic errors means the determinants errors are those for which sources can be observed or the detected. Therefore, systematic error and determinant error can be minimized. But in case of indeterminate error, the errors are which sources cannot be observed. Therefore, the indeterminate errors cannot be minimized. Okay. 100% error cannot be removed, only errors can be minimized. The determinant error can be minimized, but indeterminate cannot be minimized since their causes are not be detected or not be. Okay. What is the systematic error? Sometimes the systematic errors are also known as the zero error. And zero error, it may be positive errors or it may be negative error. And mostly the systematic error occurs mainly due to the measuring device or the instrument. Therefore, if you can calibrate, you can correct your instruments or measuring device, the systematic errors may be minimized. For example, this is the scales, but when you measure the length of this scale cannot exactly the 20, since you see that here is the cut down. Okay, so this type of error is known as the systematic error. Systematic error is further classified on the basis of their causes. Well, okay, first one is the personal errors.
name is the clear that personal errors mean these errors are not connected with the methods, are not connected with the instruments, are not connected with the procedure. But these errors arise due to the individual analyst or individual students which is responsible for them. This type of error may be arising due to the inability of making observation or certain other reason. For example, during the analytical experiment or during the titration, there are some color change. If student or analytical should not able to change in the color, then maybe chances of the personal error. Yeah, maybe during the observation, if there are three things you can read the bureau reading. First one, your eye is here. Second one, your eye is here, and third one is the eye is here. Means there are different view you can observe, you can note down the bureau reading, but the correct method to observe or to write down the bureau reading is the this one. Okay, and the error maybe in the during the bureau reading due to inability in the judging of the colors, due to using the impure reagent, or due to insufficient cooling of the crucible before the weighing. Okay, the systematic errors are also known as the zero errors. Systematic errors may be mainly occur due to the irresponsibility of the responsible of the instruments, and these systematic errors are further classified personal errors. And the personal error occurs due to the responsibility of the analyst or due to the responsibility of the student which were performing the analytical experiment. Okay. Second one is the operational error. These errors are mostly the physical in nature and occurs on the sound analytical techniques is the not followed. Okay. And the third one is the instruments and the reagent error. There are a number of factors which are responsible to produce error due to the reagent or due to the instrument. For example, if your weighing balance is not calibrated, then the error is come during the weighing is come from the analytical balance is due to the further instrument of weighing balance. Second one is the if you use uncalibrated weight box, uncalibrated burette, pipette, and volumetric frost. You can use the impure reagent. The instrumental error, the error can be avoided by using the calibrated glassware and calibrated weight box, or use the pure reagents. Okay, and the fourth one is the method errors. Yes, it is the methodic errors. These are the most serious type of error encountered in the chemical analysis. For example, method error means sometimes the formation of co-precipitate. We will discuss in the next slide what is the meaning of co-precipitate, formation of post-precipitate. For methodic error is, for example, there are two methods used. For example, there are two methods. One is the Fajan method and one is the Vollard method. But there are certain limitations used of the Vollard method and the Fajan method. These errors can be eliminated or reduced to small magnitude by employing the proper techniques. Okay. Third one is the random one. Next one is the random indeterminate error. These random errors occurs due to the accidentals and due to environmental factor. Analyst has no control. Therefore, random errors cannot be minimized since it should be not under the control of student or the analyst. This is either maybe this is the environmental factors. Okay. What is the minimization of errors? I will again clear that errors cannot be removed. You cannot remove 100% error. Errors only can be minimized.
there are different methods of error minimization there which can apply during the analytical experiment. The best one is the calibration of the operators. Calibration of the operators means all the instruments and the glassware used during the analytical experiment must be the calibrated. Okay, this is the calibration of glassware. In next slides, we also discuss about what is the calibration, how you calibrate the volumetric flask, and how you calibrate the burette, how you calibrate the measuring cylinders. Okay. And second one is the running of blank determination. Blank determination means sometimes it's also called as the blank sample. In case of blank sample, what is the means? Blank sample means the sample is without the standard, means there is suppose that you if determine the concentration of paracetamol, then in case of blank sample you cannot use the paracetamol, otherwise and use all the other solvents. Okay. Third one is the use of independent method of analysis. The fourth one is the running of control determination. Fifth one is the running of parallel determination. Next one is the standard addition method. Another one is the internal standard method. And last one is the amplification methods. Okay. Again, I also explain in the terms of what is the analytical errors. Errors means गलतियां. वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक्सपेरिमेंट के टाइम्स पर होती हैं. एनालिटिकल एरर्स, यहाँ पर ये कंफ्यूजन आता है समटाइम इन आपके सिलेबस में दिया होता है कि ओनली मेंशन द एरर्स, नॉट मेंशन द व्हाट विच टाइप ऑफ एरर, में कौन से एरर्स आप पढ़ने. तो क्योंकि ये आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका एनालिटिकल एनालिसिस में, देयरफॉर वी स्टडी द एनालिटिकल एरर्स. अदरवाइज अगर दूसरे सब्जेक्ट में दिया होता तो आपको और भी होता, तो आपको उसको मेडिकल एरर्स भी आता है. मेडिकल एरर्स डिफरेंट से आपको पढ़ना है, आपको एनालिटिकल एरर्स. ओके. एरर्स को मिस्टेक, समटाइम एरर्स इज आल्सो नोन एज द मिस्टेक या गलतियां. एरर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस डिफाइन कैसे करेंगे, यानी एरर्स को कैसे आप डिफाइन करते हैं. व्हाट इज डिफाइन द एरर्स. एरर्स इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. यानी जो दो, सपोज करो आपने एक पेन लेते हैं और उस पेन की जो लेंथ है वो है आपकी 10 मिलीमीटर. ओके. दिस ये जो 10 मिलीमीटर से ये है आपकी ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, और या इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू. सपोज करो एक स्टूडेंट आया और उसने उसको मेजर किया और वो वैल्यू आ गई आपकी 9.8, तो 10 मिलीमीटर के बजाय वो आ गई आपकी 9.8 मिलीमीटर. जब आप 9.8 को 10 से माइनस करोगे तो जो 9.8 माइनस 10 आया, ये जो डिफरेंस आया, ये है आपका एरर्स या मिस्टेक. अब यहाँ पर जब आप 9.8 को माइनस 10 से करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में. तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी एरर्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव में ही है. एरर्स जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है और एरर्स जो है वो निगेटिव में भी हो सकती है. तो इसलिए जो डेफिनेशन होगी, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. आप कभी इसको ये मत कर देना कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. ओके. बट ये एरर्स जो है मोस्टली जो एक्सप्रेस की जाती है, मतलब जो एक्सप्रेस मीन्स जो मोस्टली जो लिखी जाती है या जो रिप्रेजेंट की जाती है, वो रिप्रेजेंट की जाती है परसेंटेज में. तो परसेंटेज में मतलब क्या होती है कि आप उसको अगर किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आज आपकी आ जाती है परसेंटेज में. तो अगर आपको परसेंटेज में एरर निकालनी रहे तो परसेंटेज में निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा आपका ऑब्जर्व वैल्यू, या इसको कभी कभी हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू VA, माइनस उसको VE, फिर VE मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है ट्रू वैल्यू, डिवाइडेड बाय फिर VE इनटू 100. तो इस फार्मूले से आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंटेज एरर आएगी.
क्लियर है? मीन्स कि आपको जो एरर्स निकालनी, एरर्स है क्या, एरर्स मीन मिस्टेक, मिस्टेक मीन गलतियां। कौन सी गलतियां? जो गलतियां जो आपके एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट के टाइम पर आएंगी। आपकी पर्सनल गलतियों से कोई मतलब नहीं कि आपकी पर्सनल कौन सी गलतियां हैं। एनालिसिस के जो एक्सपेरिमेंट में जो गलतियां आएंगी, दिस इज नोन एज द एरर्स। ओके, और यहाँ पर कुछ वर्ड आएंगे, जैसे मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड मतलब वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या यानी जो वैल्यू मेजर्ड करोगे या जो ऑब्जर्व करेगा कौन, स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट जो वैल्यू, जो रीडिंग या जो भी चीज वो मेजर्ड करेगा, वो स्टूडेंट की वैल्यू को आप बोलोगे मेजर्ड वैल्यू। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी, यानी आप उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आपका ट्रू वैल्यू। डिफरेंस जो मेजर्ड और ट्रू वैल्यू का रहेगा वो रहेगा आपका एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? तो आपको दोनों क्लियर होना चाहिए कि मेजर्ड वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, परसेंटेज एरर्स क्या है, और दोनों को कैसे आप कैलकुलेट करोगे। फिर से ये कंफ्यूजन मत रहना कि एरर्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव एरर्स पॉजिटिव भी हो सकता है एंड एरर्स जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब दूसरा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब एरर्स क्या, कितने टाइप्स की हैं। तो एरर्स जो है वो दो टाइप्स की हैं, या दो तरह की होती एरर्स होती है। एक तो होता है आपका सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है आपका रैंडम एरर। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर क्या है दोनों में, सिस्टमैटिक और रैंडम में। सिस्टमैटिक एरर्स को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर या डिटर्मिनेंट एरर, और रैंडम एरर को ही हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट एरर या एक्सीडेंटल एरर। अब हम इसको डिटर्मिनेंट एरर और इनडिटर्मिनेंट एरर क्यों बोलेंगे, उसका रीजन आपको इस स्लाइड में दिया हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट एरर सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट है, उसी को सिस्टमैटिक एरर को डिटर्मिनेंट एरर इसलिए है क्योंकि इस एरर्स का जो रीजन है, यानी जो कॉज है जिसके वजह से डिटर्मिनेंट एरर या जिसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर्स होती है, वो हमको पता है। यानी हम उसको पता कर सकते हैं कि इस वजह से सिस्टमैटिक या डिटर्मिनेंट एरर्स जनरेट या हमारे एक्सपेरिमेंट में आ रही है। लेकिन रैंडम एरर, यानी जो रैंडम एरर्स का जो कॉज है, यानी जो उसका रीजन है कि किसकी वजह से रैंडम एरर आ रही है, वो रीजन हमको पता या वो हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारी रैंडम एरर है वो इनडिटर्मिनेंट एरर्स है, और जो हमारी सिस्टमैटिक एरर्स है वो हमारी डिटर्मिनेंट एरर है। क्लियर है? फिर से क्लियर कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट मतलब जिसका कारण या जिसका कॉज हमें पता हो, वो आपकी डिटर्मिनेंट एरर है, और जिसका रीजन या जिसका कॉज हमको पता ना हो कि किस वजह से एरर्स ये आ रही है, वो आपका इनडिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि आपने टाइट्रेशन करते हो, टाइट्रेशन करते समय ये लिखा हुआ है कि जब आपका कलर पिंक आ जाए उस समय आपको रीडिंग नोट कर लेना है। अब ये पिंक कलर जो ऑब्जर्वेशन है, आप अब ये इसका रीजन पता है कि आपको जब पिंक कलर आ जाए तो वो उस कलर को ऑब्जर्व करना है। यानी अगर आप उस कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको रीजन न मालूम होता तो वो आता आपको इनडिटर्मिनेंट एरर। लेकिन चूंकि आपको ये पता है कि जब वो कलर चेंज हो उस पॉइंट को रीडिंग में नोट करता है, इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा ये आपका आएगा डिटर्मिनेंट एरर। इसीलिए जो डिटर्मिनेंट एरर या सिस्टमैटिक एरर है, उस एरर्स को हम मिनिमाइज यानी हम कम कर सकते हैं। 100% एरर कैन नॉट बी रिमूव, यानी आप 100% एरर्स जो है वो रिमूव नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत गलतियां आनी आपके सेवन में। लेकिन जो इनडिटर्मिनेंट एरर है, इनडिटर्मिनेंट एरर यानी रैंडम एरर का जो रीजन, आपको रीजन नहीं पता, हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है कोई एक्सीडेंटल फैक्टर्स हो, तो जो उसके वजह से वो जो आएगी वो आपका आएगा आपका इनडिटर्मिनेंट, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, ये सिस्टमैटिक एरर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है उसके कॉज के बेसिस पे, लेकिन इनडिटर्मिनेंट एरर का क्लासिफाइड नहीं किया गया। ये सिंगल है या इसका दो क्लासिफिकेशन, एक्सीडेंटल एरर या तो इन्वायरमेंटल एरर, इसके दो ही फैक्टर्स है, एक्सीडेंटल एरर या तो इन्वायरमेंटल एरर। इसलिए इनडिटर्मिनेंट एरर या रैंडम एरर सिंगल है, लेकिन डिटर्मिनेंट एरर जो है वो 4 या 5 टाइप्स की है। अब सिस्टमैटिक एरर्स
means random, sorry, systematic error means determinant error. Systematic errors मोस्टली जो हो रही है, ज्यादातर जो होगी ये किसकी वजह से होगी, ज्यादा ड्यू टू द मेजरिंग डिवाइस, यानी जिससे आप कोई चीज मेजर करना है, नापने, डिवाइस मींस वो इंस्ट्रूमेंट या वो ऑपरेटर्स, ओके। तो जिससे आप मेजर करते हैं, जिससे आप कोई चीज वैल्यू नापते हैं, मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर्स आती है वो मेनली आपकी होती है आपकी सिस्टमैटिक एरर्स, और इसी सिस्टमैटिक एरर को बोलते हैं डिटर्मिनेंट एरर्स। क्लियर है? तो आपको ये दूसरा इसको बोलते हैं जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव एरर। आपके सामने ये स्केल दी हुई है, इस स्केल की जो एक्चुअल एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आपकी 20 है। आपको यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है, इस स्टार्टिंग आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू, कितनी लेंथ है आपको मेजर करना है, आपको 20। तो जो ये एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, तीनों को मीनिंग एक ही, एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल, वो है आपका 20। लेकिन जब आप, चूंकि ये स्केल यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुकी है, लेकिन जब आप कोई स्टूडेंट इसको मेजर करेगा तो कहाँ से मेजर करेगा, इस स्केल से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। जब आप इस ऑब्जर्व वैल्यू को ट्रू वैल्यू से, तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा आपका माइनस में। क्यों? ट्रू वैल्यू आपकी 20 है और जो मेजर्ड या ऑब्जर्व वैल्यू है वो 20 से कम। क्लियर है? दिस इज द सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर्स या डिटरमिनेंट एरर को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, या किसके वजह से होती है उसकी वजह से। पर्सनल एरर, यानी पर्सन मतलब जो स्टूडेंट, या वो एरर जो उस स्टूडेंट की वजह से होती है वो उसको बोलते हैं आप पर्सनल एरर्स। तो पर्सनल एरर्स में नाम से क्लियर है कि ये इसके लिए इंडिविजुअल स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है ये एरर्स आने की। तो अब स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? अगर स्टूडेंट जो रिएजेंट यूज करे वो कोई इम्प्योर रिएजेंट यूज कर ले, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है। या जो ब्यूरेट की रीडिंग है, वो जो कलर चेंज है वो उसको आप सही से ऑब्जर्व ना पाए कि कब उसको लाइट ब्लू है, कब वो पिंक है, कब वो लाइट पिंक है, वो कलर में वो डिफ्रेंशिएट न कर पाए। या जो आपकी ब्यूरेट की रीडिंग है, जो ब्यूरेट की रीडिंग का जो पढ़ने का जो तरीका आप देखते हो, ये जो इस स्लाइड में तो एक यहाँ पर, या तो स्टूडेंट को नीचे से देखेगा तो रीडिंग डिफरेंट आएगी, थोड़ा सा आई एंगल ऊपर हो जाएगा तो रीडिंग दूसरी आएगी। लेकिन अगर वो एकदम यहाँ से इस थर्ड वाले पॉइंट से देखेगा तो उसकी रीडिंग जो है वो डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब जो मेथड्स है वो कब लोअर मेनिस्कस पढ़ना है, कब अपर मेनिस्कस पढ़ना है, मतलब तो इस टाइप की एरर जो आएगी वो आएगी आपकी पर्सनल एरर। नाम से कहले पर्सनल एरर्स आर दोज एरर्स which are responsible or which are occurs due to the individual analyst, या due to the responsibility of the student who can perform the analytical experiment। यानी वो स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है जो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। ऑपरेशनल एरर्स को इसको कैसे कहते हैं? एरर्स ये एक फिजिकल नेचर से है, यानी इसमें आपका जब आप कोई बहुत साउंड एंड का टेक्निक आप फॉलो नहीं कर रहे उसकी वजह से, यानी आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उसकी वजह से जो एरर्स आ रही है वो आपकी है आपकी ऑपरेशनल एरर। थर्ड वन है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसको रिएजेंट एरर भी इसी में आउट होगा, अदरवाइज किसी में रिएजेंट एरर अलग दे दिया तो 5 टाइप क्लासिफिकेशन हो गया था। यहाँ पर मैंने आपको 4 टाइप्स का दिया हुआ। तो इंस्ट्रूमेंट एरर्स या रिएजेंट एरर कंबाइन कर दिया गया है। इसका मतलब वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से या जो एरर ग्लासवेयर्स की वजह से आती है उस एरर को आप बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट एरर्स। तो कैसे? सपोज करो आप यूज कर रहे हो 10 ml की पीपेट और वो पीपेट जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं है। जब आप उससे 10 ml कोई सैंपल विड्रा करोगे, यानी जब 10 ml कोई चीज मेजर या आप नापोगे तो वो मेजर कर रहा है, पता चला वो ब्यूरेट है 10 ml की और वो मेजर कर रहा है आपका 9.8 ml या 10.5 ml। यानी आपको मेजर करना है 9.8 और 10 ml, और मेजर कर रहा है या तो 9.8 या तो कम मेजर कर रहा है या तो ज्यादा मेजर कर रहा है। तो इस टाइप के जो एरर्स ना आने पाए, इसको रिमूव करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप जो भी ग्लासवेयर या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें उस इंस्ट्रूमेंट को आपको कैलिब्रेटेड होना चाहिए।
तो इस तरह करके आपको इंस्ट्रूमेंट एरर या जो रिएजेंट अगर आपका प्योर होगा तो कोई एरर्स नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका रिएजेंट में इम्प्योरिटी ऑलरेडी इम्प्योरिटी है तो उसमें आएगा इम्प्योर। सपोज आप NaOH हाइग्रोस्कोपिक है, आप उसको अगर आप NaOH को आप जब डायरेक्ट जा करके वेट करते हो बटर पेपर में लेकर के, तो सब कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस NaOH का जो वेट होगा वो वेरी कर जाएगा। या जो आप बैलेंस यूज कर रहे हो, अगर वो बैलेंस कैलिब्रेटेड नहीं है तो उस टाइम को जो उसका वेट होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है। मेथड एरर्स क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेज करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसीजर्स मेथड्स जो आप यूज कर रहे हो उस मेथड्स में कुछ एरर्स उस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं मेथडिक एरर्स। कभी कभी जैसे ये हाइग्रोस्कोपिक है सब्सटेंस है, को प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, पोस्ट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, या ड्यूरिंग एनालिसिस के टाइम पर कोई और साइड रिएक्शन हो जाती है, कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाता है। इस टाइप के एरर्स को जो बोलते हैं आपको मेथडिक एरर्स। या एंड ऑल दीज, ये सारी मतलब ये जो चारों टाइप्स या 5 टाइप किसके टाइप से आपके सिस्टमैटिक एरर्स। रैंडम एरर्स को इनडिटरमिनेट एरर बोलते हैं। मींस दैट ये एरर्स जो होगी ये जो एक्सीडेंटल होगी, इस पे किसी भी एनालिस्ट का या स्टूडेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो जो इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, इसका मतलब कि इस एरर्स को, रैंडम एरर्स को या इनडिटरमिनेट एरर को एनालिस्ट या स्टूडेंट जो है वो मिनिमाइज नहीं कर सकता। ओके। ये इस स्लाइड में डिस्कस करना था कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं एरर्स को मिनिमाइज करने की। फिर यानी आप एरर्स को कितना मिनिमाइज मतलब कम करना है, एरर्स को कितना आप कम कर सकते हैं। तो एरर्स को कम कर सकते हैं जिसका मतलब आप एरर्स का जो सोर्सेस है, सोर्सेस पता हो कि एरर्स किसकी वजह से आती है। सपोज करो आप ये पता चल गया कि आप उसी एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हो जो आपके कंट्रोल्स में हो। आपके कंट्रोल्स में कौन से एरर्स है, आपके कंट्रोल्स में आपकी सिस्टमैटिक एरर्स या डिटरमिनेंट एरर। रैंडम एरर्स या इनडिटरमिनेंट एरर्स आपके कंट्रोल्स में नहीं है, जिसका मतलब रैंडम एरर या इनडिटरमिनेंट एरर्स को आप जो है वो मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो रैंडम एरर्स को, सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज करने के डिफरेंट तरीके हैं, और उन तरीकों को या डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स है जो यूज करते हैं। द मोस्ट वन इज द यूज ऑफ द कैलिब्रेशन ऑपरेटर्स। कैलिब्रेशन ऑपरेटर्स मतलब कि जो ऑपरेटर्स या जो इंस्ट्रूमेंट यूज आप करोगे उन सभी को आप कैलिब्रेट करोगे। कैलिब्रेट करना होता है कि जो उसमें सपोज अगर 10 ml कैलिब्रेट मींस कि अगर 10 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, 10 ml की पीपेट है, 1 ml की पीपेट है, या 0.1 ml की पीपेट है, तो वो जितना उस पे मेंशन हो एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू उसकी आनी चाहिए। वो अगर तो कैसे करते हैं कैलिब्रेशन, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ब्लैंक डिटरमिनेशन, ब्लैंक होता है कि जिसमें आपको सैंपल को हटा देते। सपोज करो आपको पैरासीटामोल को एनालाइज करना हो या NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है, NaOH का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो जो सैंपल होगा उसमें NaOH एब्सेंट होगा। तो इस तरह करके कई मेथड्स हैं। कभी कभी हम उसमें स्टैंडर्ड्स ऐड कर देते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड ऐड को हम एनालाइज करते हैं और उसको हमें पता होता है कि हमने कितना स्टैंडर्ड ऐड किया है। तो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं आपको एरर के मिनिमाइजेशन के। यानी आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये इन मेथड्स को कैसे आप यूज करोगे ड्यूरिंग द एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।